A very good morning to you, sir. Sir, you have to unmute yourself. Good morning. Good morning. Good morning, sir. I also see our Central Council members, see Aniket Talati. Good morning, sir. So both our esteemed Central Council members are here on a Sunday morning. Very happy to see both of you, sir. And I'll just tell you, Jay sir, when I came to meet you on 8th of April, before 80 days, when you are about to start the movement, to take your bite at 2 minutes of your interview. At that time, sir, we just had started with around 1,000 members to get registered, with around 10 to 12 branches. And as of now, when we stand, sir, we have more than 86 branches of ICI join us for this movement, and more than 3,000 participants who are joining us daily for all the fitness exercises. And participants are from 230 plus cities and 24 plus states of the country. So thank you so much, sir, for your inspiration. I think when I met you, the one thing that really inspired me was that in spite of a busy schedule, in spite of being so occupied with the council activities and a profession, the way you give time to your fitness is really inspirational to all of us, sir. And today we are very happy that you are here to address us, sir. We always wanted one session of yours. So many CA members also demanded that we should have that one session. So before I invite you, sir, I would first request CA Aniket Talati to please address all of us and welcome you also. Thank you very much, Chairman of the Ahmedabad branch, Harit Bhai. Most respected, my senior in the council, but I think today I can address him informally, my dear friend, and I think a fitness icon for all of us, somebody who's inspired, not just student fraternity, membership fraternity, but the entire state of Gujarat, who's actually known as the diamond of the state for multiple achievements that he has done academically. You are all aware, sir has, maybe the degrees that you can see on his wall, they are just maybe a highlight of what he has achieved academically, but most importantly, how he has stayed fit, and that has changed, improved, or maintain his attitude towards life. You will agree with me, Harit, when you would have met Jai Bhai, you would never have seen him down, dull, depressed, or even talking ever in life about negativity. And I think Jai Bhai can very largely explain it, but that, in my view, goes to how he lives his life, the entire lifestyle. So not just fitness, but his approach and his attitude towards life. And I think a wonderful session that Ahmedabad branch is today organized, especially because we are in the midst of this pandemic recovering back, and now we are talking about this Delta variant, so much uncertainty. One day you wake up and you read these news articles and you feel only now things have started getting back to normal. And are we again going to see a lockdown and so much other things that go? But I think Jai Bhai, his attitude towards life, towards fitness, I think is going to be a great motivation for all of us today. So on behalf of the branch, on behalf of the institute, I would like to first thank Jai Bhai for sparing his time coming here. And I'm sure that it's going to be an extremely enriching experience. I can only share with you, Harit Bhai, in the council, even if the meeting goes very late in the night, sometimes we have discussions that go on way past midnight. Jai Bhai is one person you will see on the jogging track at 6 o'clock in the morning. Whatever is the weather, whatever is the temperature, Delhi gets extremely hot and extremely cold. But sir is able to maintain his routine, his lifestyle. And for those of you who are here in large participation, I'm seeing the number of participants increase every second, Jai Bhai. And I think they are all your fans for a long time. And you have remained as you were. I remember seeing Jai Bhai when I was a student 15, 20 years ago. And even then and today, I think he looks the same. So a great motivation that we are going to learn from you today, sir, of how to stay fit, how to keep the same attitude towards life. And most importantly, the topic for today, health is wealth, and how health also creates wealth. I think we are all aware of how Jai Bhai has been able to successfully also reach that pinnacle in life. And definitely, sir, we are all looking forward. My final parting words to the branch, I think, Harit, you very rightly mentioned about how this started as a small movement in Ahmedabad and has now garnered pace and taken over the entire country. I can only quote our senior council member, Nanda ji. Jai Bhai will agree with me. He always says this, मैं तो अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया. Log judte gaye, karwa banta gaya. And I think you have created a karwa. And who better than Jai Bhai to lead us today in this karwa, in this effort, in this huge
participation that has ensured people from across the country are joining this Fit India movement. I once again extend my warmest welcome to Jai Bhai and congratulate the Ahmedabad branch under the leadership of Harit Bhai, Bishan Bhai, Anjali Ben, Sunil ji, all managing committee members, all the members who are present here today, and wish all of you all the very best. Thank you so much, Aniket. Always a pleasure to hear you. Sir, before I tell Bishan Bhai to introduce you, since Aniket started with quoting Nanda Sahab, I'll also take a liberty of presenting a simple शायरी for you, sir. Just 4 words specially for you. कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती यूं ही नहीं उड़ाया करते, बहुत मुश्किल है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते. So thank you so much, sir, for always spreading that positivity, always spreading a smile in front of us. I would now request Bishan Bhai to please introduce sir. Jai sir, it's really immense pleasure and proud for all of us in Ahmedabad, as our beloved CCM from Ahmedabad, Aniket Bhai said, and chairman has also said a shairi for you. Your presence give us feeling of vibrancy. We can wear a vibrant color when you are there. So this is what your introduction. A perfect man and a person who believes aim while standing and not shooting. So very much prepared, holding more than 27 degrees. I have your biodata, but I can only count. I cannot speak all the degrees, sir. And yes, great academician and BOS chairman for the year 21-22. And sir, under your leadership, we can definitely say that we all are striving and achieving a great heights. With these words, sir, we welcome you and the floor is yours, sir. Thank you very much. A very good morning to all of you. Thanks a lot. My very dear friend and very learned council colleague, CA Aniket Talati, the dynamic chairman of Ahmedabad branch, CA Harit Dhariwal and his entire team, CA Bishan Shah, CA Anjali Choksi, I can see CA Vikas Jain also, and all my dear friends, once again a very good morning. And let me thank the Ahmedabad branch for providing me this wonderful opportunity. Aniket, you must have seen that in the last 1 year, while we believed that the number of students, number of programs will go down, rather the number of programs across the country has gone up like anything. And I'm sure you and I, we both are facing the same issue. Daily we are with some of the other branches, maybe some Patna branch or Ranchi branch or Bangalore branch or some branch, and on all the technical topics. So daily, you know, in a perfect attire, one has to be always in time and be very precise. Today, Ahmedabad branch has given a good opportunity where without, you know, formal dress and without a formal subject, you can talk with friends. So I think it's a great opportunity. I think probably the only opportunity I had in 1 year where I could talk with friends like this. So once again, compliments to Team Ahmedabad. The way you envisaged this program, the way you conceptualized it, and ultimately the way you executed it. 86 branches joining, more than 123 participants joining, more than 3,000 people joining on a daily basis. I'm sure about it. It requires wonderful, I can say, planning, coordination, execution. Now, this is what shows management. See, we chartered accountants are excellent when it comes to technical skills. When you display the other aspect, management, I think it adds fragrance to the flower. And that is what Ahmedabad has done. So compliments to Ahmedabad branch. I have seen that in the last few years. I've been in touch with Ahmedabad branch and I have seen the way the programs are organized. Very clear goals are there. You know, what is our target audience? What exactly you want to have? The programs are so very specific, whether it comes to technology or it comes to forensics or it comes to taxation, whatever it is. The way Ahmedabad branch is working, I'm sure about it. It is one of the most unique branches of India, ably led by Harit, the chairman, and of course, my dear friend, C. Aniket Talati, under whose guidance Ahmedabad branch is flourishing. And I must thank Ahmedabad branch for providing
such a young and dynamic council colleague. When it comes to knowledge of subjects, I think excellent knowledge. But I'm sure about it. Bishan, Harit, I can see you on screen. You must be knowing skills and talent of Aniket in terms of income tax, in terms of company law, in terms of audit, in terms of all these aspects. Of course, RERA and so many things. I cannot list out the things. But I'll add two dimensions. One, on whenever we are in council, the way he presents his views on different topics, other than these technical subjects, I think it is fantastic. I wait for a few people. If they are going to speak in council, you have to listen to them. Aniket is one of them. And the second aspect, which you might not be knowing, that I'm telling you. You talk about photography thing, and he understands it very well. He will tell, he will tell you whether it is a tele lens or it should be a wide angle lens, and you should take it from this angle or not. I did not know that. I just had an experience while discussing with him in Kerala meeting or another meeting. Similarly, once we were in Surat and we went to one particular place, and I said, this is a developing area, and immediately, oh, this is in the western part and south. It is very good, from Vastu Shastra. This is, where money should be invested. I have seen that not only in terms of academics, but these other aspects are very important. So very rightly saying, it is not about only being a chartered accountant. He said about it, the approach towards life, the attitude. And I think our today's program is more on that approach and attitude. During the last 15 days, there has been 15 months, there has been too much of hue and cry about Corona and COVID and whatnot. And today all the variants are coming up. Alpha and beta and delta and gamma and lambda and whatever type of all variants are going to come up. But the fact is, this is not for the first time any such epidemic has hit this world. The only first time is WhatsApp, Instagram, and Facebook. All these things have been there for so many years, and human race has very beautifully survived, thrived, and grown. So it's a part of the life. So it's all about lifestyle. And when the chairman, Harit, told me that you have to speak, I sincerely thought about it. I was under an imagination that generally, what happens as a council member, at times you are called upon to give the initial remarks of 5 or 10 minutes. I thought about it that this health program has gone fantastically well. So I might be required to give some 5-10 minutes speech on that. I said, that's fine. I can handle it. Honestly speaking, I was also not aware of the fact that I'm going to be a speaker for such a long period of time on this particular topic. Though I believe health is a very, very important, conscious about it. But I'm not a technical speaker on health. If you had told me to speak on IFRS or even income tax, I would have done it. Challenge, but I'm sure about it. When so many participants have joined, when they have put that, I'm sure I'll be discussing with you some few aspects, and if you can pick up 1 or 2 aspects, that will definitely help you. Well, friends, what I'm going to talk today is nothing new. And somebody very rightly said, a very wise person said that you cannot teach a person what he does not know. You cannot teach a person what he does not know. You can only bring it to his, say, consciousness. So what I'm going to talk about it, each and every person attending this program knows it. Each and every person attending this program knows it. The only thing is that knowing it one thing and feeling that deeply and executing is other thing. See, everybody knows everything. Early to bed, early to rise, everybody knows. But unless you feel from within, you will not start doing. So anyway, when it comes to health, let us take one by one different aspects of health. So let us start first with physical aspects. While we talk about health as a physical, mental, spiritual, emotional balance, right? But let us start first with the physical part. And we start with physical part when it comes to exercise. And I must once again compliment the Ahmedabad branch and all the other 86 branches for joining this particular event, this particular 73 days marathon sessions, where, our chartered accountants who are good with other aspects of life, they have joined
in a big number for this most important aspect of life, and that is health. I can see the chairman Harit. I don't see many faces, but I can see him, and I can just tell that let us understand, when we talk about health, exercise, it's so very important. Living a healthy life, it is the most crucial thing. Many times we talk about so many things, but Harit, let me tell you, everything comes after health, whether it is profession, whether it is finance, and I'll go to the extent of even using the word relationship. When your health is not good enough, then you are not even bothered about your brother and sister and daughter also. Let us understand this thing. In theory, we talk so many things, but practically, if health is not supporting, you cannot do any damn thing on this earth. So this is the most crucial aspect. Well, so let us start with it. Friends, I find so many excuses from many people कि यार ऐसा है, रात को बहुत लेट हो जाता है, ऑफिस से बहुत काम रहता है, राइट, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती. बट फ्रेंड्स, एक टारगेट रखना पड़ेगा. एंड आई विल टेल यू हाउ आई लुक एट इट. व्हाट आई डू इज I would decided that I'll spend 600 hours exercising every year, and I count it. Why I'm counting, I'll tell you. Why 600 hours I count. Fortunately, I've been successful in a couple of years doing this, and I have met the target. The reason is that if you decide that you are going to start your exercise from tomorrow, then you may postpone it, right? रात को एक प्रोग्राम आएगा वापस आपका टीवी पे, and then आप लेट नाइट सोओगे, and then you will tell your mind, ठीक है यार, आज तो बहुत लेट हो गया है, कल से नहीं, परसों से करूंगा, and you keep on postponing. But if you have a total target of say 500, 600 hours, whatever suits you, you may even start with 200 hours. You may even start with 200. But if you can count, I can tell you, आज तक के मेरे टोटल कितने आवर्स है वो मेरे पास क्लियर काउंट. मैंने आज तक के 2021 में कितने आवर्स एक्सरसाइज की है उसका काउंट बहुत क्लियर. I'll tell you why count is required. If you don't do exercise today for 2 hours, then you will have to exercise tomorrow for 4 hours. Because count तो उतना ही होना चाहिए. Count उतना ही होना चाहिए. So please understand. Oh, I would be very happy. I could see some people having videos on. Khushi had kept the video on. If you keep video on, I'd be very happy so that I can see some few faces, so that I can make out I am not talking against the wall. If some of you could keep your videos on, that would be wonderful. So, yeah, Sagar, thanks for keeping your video on. I'd be happy to see some few faces, and उसमें भी young faces होना तो मजा आता है बात करने का और भी. And हंसता हुआ फेस हमेशा यंग ही होता है. So, I'll tell you, अगर आपने टारगेट फिक्स कर दिया, say 200 hours, 300 hours, whatever, if you keep the target and you start counting, believe me, आपके ना बहानेबाजी बंद हो जाएगी. बीशा अगर हम थोड़ी भी बहानेबाजी करते हैं ना कि नेक्स्ट मंडे से करूंगा, नहीं, अभी तो ऑडिट की सीजन चल रही है, नहीं, इसके बाद तो भी अहमदाबाद का ये इवेंट हो जाए बाद में. बट अगर आपने फिक्स कर दिया ना 600 आवर्स, तो अब अक्कल आई जाएगी कि इफ यू डोंट डू इट टुडे तो कल डबल करना पड़ेगा. एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, if my schedule is 1.5 hour exercise today, if I don't do it, I'll do it 3 hours tomorrow. I'll not skip it. Because total is total. I have to achieve by hook or by crook. Fortunately, for many years, I've been achieving it. For many years. Today morning also, I had 2 hours of exercise in a garden. And I think it's a luxury. थोड़ा सा अपने को ऐसा फील होता है कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा. In the initial few days, we feel like that. But it is only for a few days. Thereafter, I tell you, you'll enjoy it thoroughly. Maza hai, you'll enjoy it. Well, when you talk about exercise, it might include yoga or walking or cycling or swimming or weight training or gymming, whatever you feel. And friends, आप exercise को exercise के angle से ना देखें. आप एक काम करके देखिए. You just go for a walk on a daily basis. कभी शाम को निकल जाइए, कभी मॉर्निंग में निकल जाइए. मैं तो कहता हूँ दोनों बार निकल जाइए. एंड हो सके अकेले निकल. बॉस की if you go for walk,
गो अलोन, राइट? 4 लोगों को लेके मत जाइए, नहीं तो किटी पार्टी है ना वॉक पे आ जाती है। भीषण, अगर आप वॉक पे 4 लोगों के साथ जाओगे जो जीएसटी आपको परेशान करेगा वॉक के वक्त, मत करो, राइट? ठीक है, समटाइम्स विद फ्रेंड्स वॉकिंग माइट बी क्वाइट गुड, बट आई बिलीव, मैं तो पर्सनली चूज करता हूं, आई गो अलोन ओनली, आई गो अलोन ओनली, एकदम पीसफुली, एकदम पीसफुली। इफ यू आर इन अ ग्रीन प्लेस, इफ यू आर इन अ ग्रीन प्लेस, वॉकिंग अलोन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लग्जरी इन लाइफ। ठीक है, चलो, अगर आपको लगता ही है कि फ्रेंड्स के साथ जाना है, सो इफ यू आर गोइंग टू वॉक फॉर 1.5 hours, से फॉर इंस्टेंस, आधा घंटा गप्पे मार लो फ्रेंड्स के साथ, फिर उनको बोलो भाई तुम इधर से टर्न मारो, मैं इधर से करूंगा, राइट? अकेले चलना, इट्स वंडरफुल, राइट? जब हम ये सब तो जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ क्रिएट्स वेल्थ, बीच में थोड़े ग्लिम्स डाल दूं। सिंसियरली स्पीकिंग, व्हेन हरित टोल्ड मी यू हैव टू स्पीक अबाउट हेल्थ, एक जन जल्पा देसाई ने बोला ईयरफोन्स एंड व्हाट आर योर गुड फ्रेंड्स, तो जल्पा में आपको बता दूं, ईयरफोन्स की भी जरूरत नहीं। नेचुरल वॉक मतलब एकदम नेचुरल वॉक, नेचर इटसेल्फ इज म्यूजिक। क्यों ईयरफोन कंटिन्यूस कान में लगा के कान की हेल्थ को नुकसान करना? एंड आई टेल यू वन थिंग, ईयरफोन्स, इफ यू आर यूजिंग ईयरफोन्स, यू आर यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस, इवन फॉर हाफ एन आवर, तो आप अपने कान को इररिपेरेबल डैमेज कर रहे हो। भाई बाल तो वापिस आ जाते इधर उधर काटे तो, ईयर ड्रम्स इफ दे आर डैमेज परमानेंटली। तो मैं सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूं, हेडफोन्स आर बेटर देन ईयरफोन्स एंड नो हेडफोन्स आर स्टिल बेटर, आर स्टिल बेटर। सो जाइए वॉक, वैसे ही जाइए। अरे बहुत शौक है गाने का, तो गुनगुनाते जाइए, सुन के क्यों जा रहे हो? सो इफ यू गो फॉर वॉक ऑन अ रेगुलर बेसिस, नाउ लेट मी लिंक विथ इट। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट इट कि जब चेयरमैन अहमदाबाद ब्रांच हरीश जी ने मुझे कहा कि बॉस यू हैव टू स्पीक ऑन हेल्थ, तो इनिशियली आई थॉट आई हैव टू जस्ट पास गिव सम कमेंट्स, सो आई सेड ओके। बट यस्टरडे इवनिंग आफ्टर माय अदर सेशंस वर ओवर, आई थॉट अबाउट इट कि बॉस इफ आई हैव टू स्पीक फॉर सम 45 मिनट्स, तो मेरे पास कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं क्या बोलने वाला हूं। इट्स अ चैलेंजिंग थिंग ऑफ कोर्स, बराबर। इन डे से तो आप बहुत स्मूथली गो थ्रू कर सकते हैं, इनकम टैक्स है गो थ्रू कर सकते हैं, बट हेल्थ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सब जानते हैं, व्हाट आर गोइंग टू स्पीक। तो मैंने, जब हरित ने मुझे आगे कहा था ना, मैं बोला भाई अगर हम टॉपिक सीरियस रख देंगे ना, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा टॉपिक का नाम अच्छा सोचो। तो ही केम अप विद द टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ क्रिएट्स वेल्थ। अब सेकंड चैलेंज मेरे लिए रख दी कि हेल्थ क्रिएट्स वेल्थ। अगर कोई सुन ले तो देन उसे, यार देखो अब तुम्हें वेल्थ के बारे में कुछ तो बताना ही पड़ेगा, हमें वेल्थी तो बनना है, एंड इट इज गुड टू बी हेल्थी एंड वेल्थी। सो आई टेल यू, मिशन कभी चेक करके देखो, इफ यू आर रेगुलरली गोइंग फॉर वॉक, इफ यू आर रेगुलरली गोइंग फॉर वॉक, राइट, अलोन, आपके दिमाग में जो आइडियाज आएंगे ना, इफ यू आर द ब्रांच चेयरमैन, तो यू विल हैव वन ऑफ सम वंडरफुल आइडियाज फॉर ब्रांच प्रोग्राम्स, राइट? अगर आपकी ऑफिस के कोई इश्यूज है, अचानक चलते चलते सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आई एम नॉट जोकिंग। एंड पर्टिकुलरली इफ यू आर अ पर्सन विथ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ है, अगर आप नए आइडियाज लाना चाहते हैं, भाई साहब जमाना जोमेटो का है और उबेर का है, एंड आई टेल यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी फैंटास्टिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फैंटास्टिक, एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स। Chartered accountants की very good management consultants. See, we are very good income tax people. We can consult people in income tax very well. We approved it. Same with GST, same with company law. We are very good with all these aspects. But along with that, we can be great management consultants. बिजनेस को समझने का, बिजनेस को समझने का अच्छी तरह से, ये जो नजरिया है ना, ये हम बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, वी विल हैव टू डेवलप इट. इट इज नॉट ऑटो. It is not auto. Bishan, I'll tell you one very interesting thing. If the same song is going on, if a guitarist is listening to it, his focus will be मुखड़े में C बज रहा है, अंतरे में F sharp बज रहा है. He is not listening to words. If a singer is listening to it, then he will listen to it. उसका ध्यान सिर्फ वर्ड्स के ऊपर जा रहा है, right? If a drummer is listening to it, उसका ध्यान ये जा रहा है कि यार ये 24 बीट चल रहा है और स्नेयर 3 पे, 11 पे और 19 पे बजी थी, एंड सिंबल 24 पे बजा था, उसका ध्यान उस पे जा रहा है। मतलब चीज वही है, नजरिया अलग अलग।
So we chartered accountants are very good with income tax, with audit, with taxation, so many things, so many peripheral things. पर अगर नजरिया, अगर हम थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर टाइप का मैनेजमेंट के एंगल से देखें, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स इस बात को और ध्यान से सुनिए, तो आपका जो सीए का स्कोप है ना वो 10 टाइम्स बढ़ जाए, 10 टाइम्स कह रहा हूं, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज अ वेरी हाई पोटेंशियल. और वो नजरिया, जैसे मैंने कहा ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया उनको थोड़ा चैलेंज आया था, बिकॉज ऑर्केस्ट्रा वाला बोल रहे थे यार स्केल में नहीं गा रहे, बिकॉज अब तक आपका ध्यान सिर्फ वर्ड्स पे था, स्केल पे नहीं था. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो ईच एंड एवरी पर्सन लुक्स एट द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो जब आप रेगुलर वॉक पे जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, यकीन मानिए आपके दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज आएंगे. अगर आप मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं तो आप सुनिए, अगर आप रेगुलरली वॉक पे जा रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको नहीं पता चलता. योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग, योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग. आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, राइट? इवन इफ यू आर एट द एज ऑफ 50 एंड इफ यू आर गोइंग रेगुलरली, पुलकित की एक कमेंट है, स्टे रोमांटिक विथ योरसेल्फ. ऑफ कोर्स 101% stay romantic, I agree. Stay romantic with people, I agree. Stay romantic with yourself, definitely yes. Stay romantic with everything. वही तो है. इस दुनिया का सबसे रोमांटिक आदमी वो है जो अकेला वॉक कर सकता है. इस दुनिया का सबसे रोमांटिक आदमी वो है, अरे भाई 4 लोगों के साथ बक बक करके तो पूरी दुनिया वॉक कर सकती है, पर अकेले वॉक करके वो बादलों का मजा लेना, वो पेड़ों का मजा लेना, दैट इज रोमांस. ठीक है, तो भाई रोमांस विद सेल्फ ये भी होना चाहिए, और भी रोमांस होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए. लाइफ रोमांटिक होनी चाहिए, और अगर वो सीए की नहीं होगी तो और किसकी होनी चाहिए? सो दैट इज द पॉइंट. यू नो, यू शुड बी एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, एक्सीलेंट. योर नॉलेज ऑन इनकम टैक्स, योर नॉलेज ऑन ऑडिट, वंस अगेन आई रिपीट, शुड बी एक्सीलेंट. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम कर ही नहीं सकते. बट अलोंग विद दैट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अगर आपकी लाइफ में हेल्थ नहीं है, वो रोमांटिक फील नहीं है, तो जी क्या रहे हैं? So that is it. So, you know, go for a walk on a regular basis. Run करिए, right? थोड़ा बहुत रन करिए, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, and you will enjoy it. You will enjoy it. कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है, those who are runners, सुबह हो जाए वो शुरू हो ही जाते. Those who are cyclists, सुबह हो जाए वो शुरू हो ही जाते, because you know they start enjoying it. अरे भाई साहब, आप गिटार उठा के देखिए, once you start playing guitar, सुर नहीं आता, बराबर सुर नहीं आता. So initial days you don't enjoy it. बट आ जाए उसके बाद कैसा मजा आता है. सिमिलरली, once you go regular for running, once you go regular for swimming, once you go regular for cycling, उसके बाद इतना मजा आएगा अंदर से. सिंसियरली कह रहा हूं, बहुत ही मजा आएगा. एंड जब मजा आता है ना, आपका दिमाग उस तरह से होता है, आइडियाज वहां से आते और वेल्थ आइडियाज से आते. लेट अस अंडरस्टैंड, वेल्थ क्वालिफिकेशन से नहीं आती सर, वेल्थ बुक्स पढ़ने से नहीं आती, वेल्थ आइडियाज से आते. एंड आज का जमाना स्टार्टअप का जमाना, यंगस्टर्स. पुराने जमाने में तो मुश्किल था, हरित, पुराने जमाने में मुश्किल था. आपको ही लक्ष्मी लानी पड़ती थी, आपको ही सरस्वती लानी पड़ती थी बिजनेस के लिए. टुडे इफ यू हैव सरस्वती, यू हैव एन आइडिया, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आर देयर, स्टार्टअप फंडर्स आर देयर. आपको तो सिर्फ आइडिया चाहिए, राइट? और सीए स्टूडेंट से अच्छे, सीए से ज्यादा अच्छा आइडिया कौन दे सकता है बताइए, जिन्होंने इतने सारे बिजनेसमैन को कंसल्ट किया. नजरिया बदलने की जरूरत है. सी व्हाट हैपेंस इफ आई एम नॉट गोइंग रेगुलरली फॉर एक्सरसाइज, फॉर वॉक आउटसाइड, और मैं कमरे में बंद सिर्फ अगर अपना काम करता रहूंगा, धीरे धीरे मेरा दिमाग आइडियाज प्रोड्यूस करना कम कर देगा, विच इज अ फैक्ट. एंड वेल्थ कम्स बाय वे ऑफ न्यू आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन. यू नो, यू हैव टू execute, you have to create. So when you talk about exercise, along with that next comes sports. देखिए साहब, किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखिए, उसको देखने का मजा आता है. I'll give an example. I can see Radha Iyer. So Radha, I'll tell you, once I was at Pune airport and I saw a gentleman, एकदम मस्त ब्लैकी जेंटलमैन था, और मैंने उसको देख के, अरे यार, आज से 25 साल पहले ये विवियन रिचर्ड्स ही होता. सर विवियन रिचर्ड्स, द किंग ऑफ क्रिकेट. हम छोटे थे, उनको देखते थे, बहुत मजा आता था. ये अलग बात है, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, थोड़ा डरावनी टीवी हुआ करते थे. बॉस की, यू विल एग्री विथ मी,
ब्राइटनेस बढ़ाए तो इंग्लैंड की टीम नहीं दिखती थी, एंड कम करे तो वेस्ट इंडीज नहीं दिखती थी. सो दैट वाज द टीवी. सो पुणे एयरपोर्ट पे आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट जेंटलमैन. यार 25 साल पहले विवियन रिचर्ड्स ऐसा ही दिखता था. क्या मस्त दिख रहा है. एंड यू नो व्हाट, मैं बैठा रहा एयरपोर्ट पे 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट, 1 आवर, एंड आफ्टर 1 आवर 4-5 और क्रिकेट के खिलाड़ी अंदर से निकले, वो आईपीएल वाले. एंड देन आई रियलाइज्ड ही वाज एक्चुअली विवियन रिचर्ड्स. ही वाज एक्चुअली विवियन रिचर्ड्स, जिसको मैं बचपन से बहुत पसंद करता आ रहा था. सर विवियन रिचर्ड्स, द किंग ऑफ क्रिकेट, द किंग ऑफ क्रिकेट. एंड आई वाज शॉक्ड. मैं बोला बॉस, ही मस्ट बी 60 प्लस, बट उसकी जो फिटनेस थी, it was as good as 21, as good as 21. So बॉस की, is it not a surprise? ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि फिर कोई नीना गुप्ता बिना शादी किए एक बच्ची माशाबा विवियन रिचर्ड्स की पैदा करे. उस आदमी में कुछ बात है ना ऐसी. At the age of 60, he looks like 21. He's much more fitter than what I am and what you are. क्या लाइफस्टाइल है. सो एक चीज है, जो आदमी स्पोर्ट्स खेलता है वो फिट तो रहता है, एंड स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से वो पॉजिटिवली सोचता है. राइट, जस्ट लुक एट इट. दोज हु आर स्पोर्ट्समैन, राइट, दे आर वेरी गुड इन अदर एस्पेक्ट्स आल्सो. सो व्हाई डोंट वी ऐड सम स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ? जो भी हो सकता है, लेट इट बी बैडमिंटन, लेट इट बी वॉलीबॉल, व्हाटएवर, इवन टेबल टेनिस. द ओनली कैवियट इज PUBG is not a sports, please. Video game is not a sports. No. तो गेम्स खेलिए. यकीन मानिए, इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, आपकी कोई एज ही नहीं होगी. सी, एज अपना काम करेगी, बट आपकी जो फिटनेस लेवल होगी ना, वो अलग ही होगी. सो स्पोर्ट्स इज अ मस्ट. मुझे इंडियन स्कूल से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बहुत पढ़ाते हैं, उससे फायदा किसी का होता है ना, नॉट श्योर. स्पोर्ट्स चाहिए, और इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स चाहिए. आई वाज स्टडीइंग इन UCLA. माय कॉलेज वाज इन लॉस एंजलिस. क्या बड़ा कैंपस था. एवरीवेयर एवरीबॉडी इज प्लेइंग स्पोर्ट्स. तो लगता है कि यार जी तो यही लोग रहे. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो आई थिंक अ CA स्टूडेंट, अ CA शुड बी इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स. ये बहुत जरूरी है. एंड एक्सरसाइज की बात करें तो साथ में ऐड करते करते लेट मी ऐड योगा. राइट, व्हेन आई टॉक अबाउट योगा, अब जनरली योगा का मतलब लोगों को लगता है किसी तरह से अपने आप को थोड़ा तोड़ो मरोड़ो, यू नो, उठ पटंग आसन करो. बट आई टेल यू, योगा इज अ boon that India has given to the entire world. इंडिया को कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, इसमें कोई कर ही नहीं सकता. मैं योगा का पहले आपको साइंटिफिक लॉजिक बता. साइंटिफिक, यू नो, इफ यू रियली वांट टू बी वेरी शार्प, तो आपकी जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड, वो एकदम फ्लेक्सिबल और इरेक्ट होनी चाहिए. फ्लेक्सिबल एंड इरेक्ट. कभी आप चेक करके देखना, हरीश, जस्ट चेक इट आउट. सपोज यू आर टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट ICA ऑन मोबाइल, और आप लेटे लेटे बात कर रहे हो, आपसे होगी नहीं. राइट, खड़े होंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस से बात हो. नाउ दिस पीपल माइट फील यार ये क्या बात कर रहे हो, बट आप चेक करके देखना अपनी साइकोलॉजी. वी वेर ऑल एनिमल्स. हम ह्यूमन बीइंग कब बने? when our spine became erect, when our vertebrae became erect and vertical. So yoga से सबसे बड़ी चीज होती है आपकी स्पाइन को आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे. And I tell you, most of the perceptions of your life, please understand your emotions. Right, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इमोशंस. मैं इमोशनल ड्रामा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमोशंस की बात कर रहा हूं. राइट, तो ये जो इमोशंस है ना हमारे, इसके साथ बहुत कनेक्टेड है हमारी स्पाइन. हमारा दुनिया देखने का जो परसेप्शन है ना, सेम दुनिया है. एक अलग तरह से देखता है, दूसरा अलग तरह से देखता है. दोनों अलग अलग तरह से देखते हैं. ऑन अ लाइटर नोट, only on a lighter note, it is said that if two couples meet in a marriage, wives look at each other's jewelry and husbands look at each other's wives. So only on a lighter note, my point is, दुनिया को देखने का नजरिया सबका अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो ये परसेप्शंस की बात. एंड ये परसेप्शंस के साथ हमारी स्पाइनल कोड बहुत ही अच्छी तरह से
जुड़ी हुई है, in the chat box, Hema Shah said Ida, Pingla and all these things, spinal, definitely. हमारी बहुत सारी नाड़ियां हैं, something 72,000. See, I am not an expert on it. Please understand. मैं तो सिर्फ योगा करता हूं. बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, बट आई थॉट कि चलो एक बार अपने सीए फ्रेंड से स्पिरिट में बात तो करें. कम से कम हो सकता है बात करने से कोई अगर वॉक पे नहीं जा रहा है शुरू कर दे, हो सकता है शायद कोई साइकिल खरीद ले, right? So only by that is the purpose. So yoga is wonderful. Yoga actually, I tell you one thing, there is a cosmic geometry. There is a cosmic geometry. If our human body is aligned with that cosmic geometry, तो आपका नॉलेज एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाए. ये वंस अगेन जो थोड़े पुराने होंगे, अब मुझे कोई पुराना दिख नहीं रहा है, सब नए नए और यंग दिख रहे हैं, बट स्टिल इफ आई गो बाय विशन, इफ यू रिकलेक्ट व्हाइल वी आर ग्रोइंग अप, वो पुराने जमाने के टीवी के एंटेना होते थे, टीवी एंटेना, उसको घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ तब जाके कुछ चैनल पकड़ता. ठीक है, योगा इज अबाउट एंटेना. अगर आपने पुराने टीवी का एंटेना नहीं ठीक किया था तो चैनल पकड़ती नहीं थी. सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉस्मोस. मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, एंड बिलीव मी, मैं आज जो भी बता रहा हूँ, जो मेरे मन में स्पॉन्टेनियसली फील आ रहा है वही बता रहा हूँ, राइट? जो मन में आ रहा है, मतलब मुझे भी नहीं पता है कि ये मेरे दिमाग में अचानक क्या क्या आ रहा है, बट सो दिल से so Rabindranath Tagore made one beautiful statement. मैं कोई बहुत बड़ा फैन हूं ऐसा तो पक्का नहीं कह सकता, बट एक स्टेटमेंट बहुत ब्यूटीफुल. each child born gives me an assurance that nature is not yet fed up of human beings. Each child born gives me an assurance that nature is not fed up of human beings. एक बच्चा पैदा होता है और हमें भरोसा है कि आज भी नेचर हमारे साथ, और अगर इस नेचर ने इस बच्चे को पैदा किया होगा तो उसके अंदर वो हर एक पोटेंशियल होगा. अगर आम की गुठली बनाई होगी तो उसमें आम का पेड़ होने का प्रोग्रामिंग अंदर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ है अंदर, सब कुछ है, राइट? द ओनली थिंग इज यू हैव टू गिव द राइट मैन्योर एंड राइट वाटर इन द सॉइल. उसी तरह से each child born, nature has given enormous potential, enormous, and this is the spiritual side, and I'm sure about it. No other country other than India can speak on this spiritual aspect with this confidence, right? India के पास जो spiritual base है, अगर आप सही मायने में उसको देखेंगे तो each child born उसके पास पूरा potential, but उसकी ज्योमेट्री कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ मैच होगी, वो एंटेना ठीक से कैप्चर करेगा. एंड डू आई रिक्वायर टेलिंग यंगस्टर्स, आपके मोबाइल का टावर नहीं हो तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है? यंगस्टर्स को पता है ना क्या प्रॉब्लम होता है? हम चाहते नहीं है, लेकिन बाई चांस कोई यंगस्टर स्वर्ग लोक में गया और उसको अगर मतलब रोड बीच में ही पूछ लिया जाएगा, भाई तू नर्क में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा, तो ये यंगस्टर विल टेल कि बॉस कहीं भी भेज दो, नर्क में भेजो, स्वर्ग में भेजो, कहीं भी भेजो, बस मेरा एक मोबाइल मुझे अलाउ कर दो. सो let us understand, without the proper network, does your mobile work? No. Similarly, yoga is about your network with the cosmic network. इतनी सारी चीजें अपलोड और डाउनलोड हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड में होता है. So that is the power of yoga, right? So make walking a daily routine, और गप्पे मारते मारते नहीं. I just remember one incident here. भाई मुझे तो इंसिडेंट बहुत पसंद आया. Many years back, I went to Oli. Oli is in Garhwal mountain range, a beautiful skiing resort. So I went to the cliff top, which is said to be the resort at an altitude of 10,200 feet, which is a good altitude. And it is said that RCI के जितने resorts हैं उसमें highest altitude पे ये है इंडिया, right across the globe. So went to cliff top. अब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस. बराबर सामने there is Nanda Devi Peak, 15,600 probably, snow clad, beautiful, beautiful. The resort is beautiful. ठीक है. Now we just reached there, और अब मैं देख रहा हूँ लोग क्या कर. एक मुंबई का गुजराती फैमिली था, एंड थोड़ी देर के लिए बाहर आए, 5 मिनट के लिए, अरे बहुत ठंडी लगे,
फोटो पढ़नी, 2 फोटो खींचे अंदर। इनका ओली सिर्फ आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही दिख सकता है और कहीं नहीं दिखेगा, राइट। अच्छा बस खत्म इनका ओली 5 मिनट में। वापिस शायद शाम को एक आध बार निकले होंगे, कितना फाइन वादळ છે और तुरंत अंदर से आवाज आई, अरे बोलो प्रोग्राम चालू થઈ ગયો, गए अंदर। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। अब वो नंदा देवी पिक सोच रहा होगा कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे तो देख। देन इन द इवनिंग सम 3-4 पंजाब के लड़के इकट्ठे 6 फुटिए, वेरी हैंडसम। पहले मुंबई वाले भी ब्यूटीफुल थे, वो मैं जरा बताने से कतरा रहा था। तो एकदम हैंडसम से लड़के आए, आते ही रॉड निकाला, चिकन विकन लिया और बारबेक्यू करना शुरू। बॉटल फोड़ी, ड्रिंक बारबेक्यू। वो नंदा देवी पिक बोल रहे भाई मुझे भी देख ले। एंड 3 रन और थे, तीनों 3 कंटिन्यूस पत्ते खेल रहे थे, पत्ते। अरे बॉस, यू हैव गॉन टू ओली, यू हैव गॉन टू माउंटेन रेंज। अगर आप ठीक है छोटे बच्चे होते, पत्ते खेल रहे होते, या बहुत बुढ़े हो गए होते और चल नहीं सकते थे, थोड़ा खेल होते, अरे वॉक पे निकलो यार बाहर माउंटेन रेंज में। बी अलोन, बी विद द माउंटेन। अकेले रहोगे ना तो नंदा देवी पिक से बात करने का मौका मिले। एंड दैट इज एक्चुअल रोमांस, दैट इज एक्चुअल रोमांस। रोमांस इज नॉट अबाउट लैला मजनू, ये सब ठीक है, ये सब थियरी है, ये सब थियरी है। रोमांस वो है कि सी शोर पे अकेले वॉक करने का मजा लेना। रोमांस वो है स्नो क्लेड माउंटेन और आराम से अकेले बैठना और उसको ऑब्जर्व करना। दिस इज एक्चुअली रोमांस अकॉर्डिंग टू मी। सो एनीवे, तो ये ओली का मैंने एक्सप्लेन बोला यार तुम ये, और तुमने टाइम नहीं दिया उसको। सो थोड़ा टाइम अकेले रहना सीखो। मुझे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सब पूछते हैं, संदीप, आई कैन सी संदीप ज्ञान चंदानी। तो संदीप जी मुझे एक कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तू अकेला क्यों घूमता है? भाई अकेला ही तो घूमना चाहिए। every year I go to Himalayas for 15-20 days and I go alone. I cannot tolerate पूरे दिन लोग पक करते रहे। Every year I go to Europe for 20 days, except this 2020 was the unfortunate year. So you know, अकेले जाते हैं जब हम, तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज क्या होती है पता है? You come to know about yourself. आपके अंदर जो अच्छी चीज है ना, आपके अंदर जो खराब चीज है, दोनों है, वो आपको पता चलती है। यू कम अक्रॉस व्हाट यू आर एंड दैट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर अ फ्यू डेज। एंड फ्रेंड्स, अगर 20 दिन अकेले जाए ना, तो एक बहुत महान काम मत करना, मोबाइल लेके मत जाना। मोबाइल लेके जाए तो फिर वो गाना चलता है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, राइट। मोबाइल लेके गए मतलब पूरी दुनिया आपके साथ ही जा रही है, आप अकेले कहाँ हो? मोबाइल बंद, स्विच ऑफ। अगर नहीं रहा जाए तो दिन में 1 या 2 बार मोबाइल ओपन करके देख लेना। जस्ट बी अलोन एंड यकीन मानिए हेल्थ तो आपकी बढ़ेगी, यू विल हैव ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, आपका एक्सपीरियंस एनहांस होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। एंड टेल मी वन थिंग, विथ एनर्जी, विथ फोकस, इफ यू गो टू ऑफिस, संदीप जी आप मुझे बताइए, तो क्या 5 घंटे का काम 2 घंटे में होता है? नहीं होता। योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस और नॉट। द डे व्हेन योर एनर्जी लेवल इज लो, you cannot do your work of 2 hours in 5 hours. And when you're super excited, पूरे दिन का काम आप 2 घंटे में करके निकल जाए। So does it not increase your productivity, efficiency, and ultimately it does not create the wealth? So please understand, this is what is required. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, मेडिटेशन। Now that is about spiritual well-being. देखिए अगर आप रेगुलर टेम्पल जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहां पे आप जिसको गुरुद्वारा जाते हैं, जिसको जो सूट करता है, देरासर जाते हैं, तो ठीक है, अच्छा ही है, अच्छा ही है। अपने घर पे ही कुछ कर रहे हैं तो भी अच्छा है भाई, आपको जो भी सूट करता है। आपको सूट करता है एक ओमकार सतनाम करता पुरख, तो भी ठीक है। अगर आपको सूट करता है नमो अरिहंतम, नमो सिद्धार्थम, नमो आर्यन, तो भी ठीक है। जो भी सूट करता है, दैट इज गुड। मेडिटेशन, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मेडिटेशन, तो यंगस्टर्स क्या सोचेंगे? आई एम नाउ गोइंग टू बी टॉकिंग टू स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। फॉर यंगस्टर्स मेडिटेशन, अरे यार सीरियस ऐसे बंद करके बैठे रहने का, जी नहीं। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट सीरियसनेस, बिलीव मी। मेडिटेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट द बेस्ट थिंग आउट ऑफ, द बेस्ट थिंग आउट ऑफ। इट इज नॉट अ सीरियस अफेयर। शुरुआत में लगेगा, शुरुआत में कोई भी चीज ऐसी लगती है, शुरुआत में जरूर लगती है,
क्वेश्चन है व्हाट इफ वन डजंट बिलीव इन गॉड, नो प्रॉब्लम, डोंट बिलीव इन इट. किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इफ वन डज नॉट बिलीव इन गॉड, इट्स ओके. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. इंडिया यही कहता है कि वॉट एवर यू वांट टू बिलीव, बिलीव इट, बट go beyond your beliefs and just try and search for it, seek for it, right? अभी मैं spirituality की तरफ बहुत ज्यादा नहीं चला जाऊंगा, but I tell you, India is a wonderful country. इस country में if you want to believe in Shiva, you are allowed. If you want to believe in Ram, you are allowed. If you want to believe in Mahavir, you are allowed. If you don't want to believe in anyone, wonderful, you are still respected. So that's a wonderful concept. पर अगर आप नॉन बिलीवर, देखो कोई नॉन बिलीवर है तो उसको आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर आप नॉन बिलीवर है तो मैं आपको एक बहुत राज की बात बताता हूँ. भीषण, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ब्यूटीफुल. मेरे घर में एक मर्सिडीज पड़ी है, एंड यू नो व्हाट, ये मर्सिडीज किसी ने बनाई नहीं है, कंपनी ने बनाई है, ये अचानक जमीन में से उगी थी, ऐसा ही बन गई थी. एंड यू विल से कि ये पागल हो गया, काउंसिल का इतना बर्डन आ गया है, ये पागल हो गया है. बोले इतनी वंडरफुल मर्सिडीज और किसी ने बनाई नहीं, तो भाई साहब इतनी बड़ी मर्सिडीज ये जो है अपनी बॉडी, ये किसी ने बनाई नहीं. अगर मर्सिडीज किसी ने बनाई, हमारी बॉडी तो उससे अच्छी है, तो कहीं से तो बनी. आप गॉड वर्ड यूज करिए, आप यूनिवर्स यूज करिए, आप उसको नेचर यूज करिए, आप जो यूज करना करिए. जादू हो गया था क्या? जादू. So let us understand once again, कुछ तो होगा, something is there. अगर something is there नहीं होता तो इतना ब्यूटीफुल समर, विंटर, मॉनसून कैसे होता, राइट? मतलब जो ऐसा मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार ये गॉड के बारे में कुछ, इवन यू नो कैसे ऐसा होता है कि अचानक वाटरमेलन खोले तो उसका टेस्ट अलग निकलता है और ग्रेप्स का टेस्ट अलग नहीं तो निकलता उसी जमीन में से. एंड स्टिल इफ समबडी डज नॉट वांट टू बिलीव, एंजॉय इट. सिंपल. सो मेडिटेशन है ना, सीरियस चीज नहीं. मैं मेडिटेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं. अच्छा, आपको इससे ज्यादा पहले मैंने एक एग्जांपल आया, भाई अहमदाबाद ब्रांच ने किया है प्रोग्राम, तो गुजरात की बात तो करनी चाहिए. एंड यू नो व्हाट, ओरिजिनली व्हाट वाज गरबा? गरबा वाज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. जब आप बहुत ही ब्यूटीफुली स्लो ताल में आराम से जब झूम रहे हैं कंटिन्यूअस, थोड़े टाइम के बाद यू नो यू स्टार्ट फीलिंग मेडिटेशन. दैट वाज ओरिजिनली गरबा. भाई आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल तो उसमें मैकारेना भी होता है, एंड हु लेट द डॉग आउट भी होता है, सनेडो भी होता है, सब कुछ होता है, एंड दैट्स फाइन, दैट शुड को एग्जिस्ट. बट ओरिजिनली गरबा का ये कंसेप्ट, इट वाज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट. एंड शायद अगर आपको नहीं पता हो तो ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है. इफ यू हर्ड अबाउट जलालुद्दीन रूमी was a great mystic. सूफीज्म में था, राइट? इस्लाम से बिलोंग करते हुए सूफीज्म में उनका भी मेडिटेशन का जो तरीका था ना, वो इस तरह से घूमने का था. दैट सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, इसको टेक्निकल भाषा में यूं कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी जो आपकी रहती है, यू नो, वो आपको फोकस देती. सो गरबा भी एक प्रकार का मेडिटेशन. अच्छा, कई बार डांस पार्टी में भी आप मेडिटेशन स्टेट में हो सकते हैं. व्हाई डू आई से कई बार? क्योंकि अगर डांस पार्टी में मैं, संदीप जी और भीषण जी गए और अगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा कम आता है, उसको ज्यादा आता है, ये स्टेप मुझे नहीं आता, तो ये मेडिटेशन नहीं है. बट सब कुछ भूल के मुझे तो जितना आता है उतना ही आता है, मैं तो अपना डांस कर रहा हूं, बाजू वाले को जो स्टेप करना है करे. भाई साहब हम पुराने जमाने के लोग हैं, एटलीस्ट मैं तो हूं. सो आई डोंट नो द न्यू सॉन्ग्स. मुझे नहीं पता न्यू सॉन्ग्स में कौन से सॉन्ग पे कौन सी एक्शन हो रही है. सो इफ आई गो विद द यंगस्टर्स, आई कैन नॉट डांस लाइक देम, बट मैं अपनी तरह से कर सकता हूं. अगर अपनी ही तरह से करना शुरू कर दे, इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, वेरी मच. डांसिंग हैज ऑलवेज बीन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं. माय यंगर डॉटर, व्हेन आई से यंगर, अब तो ऑफ कोर्स वो सीए में है. माय एल्डर डॉटर इज आल्सो इनटू सीए, यंगर आल्सो इज इन सीए. तो मेरी यंगर डॉटर जब बहुत छोटी थी, तब उसको अगर एक केक मिल जाए, पेस्ट्री केक कुछ मिल जाए, तो कोने में जाके बैठ जाती थी, मुंह उल्टा करके दीवार की तरफ. अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पार्टी में कौन है, आजू बाजू कौन है, अंकल है,
फादर है मैं नहीं जानती किसी को, मेरा बाप कौन है मैं नहीं जानती, मेरा अंकल कौन है मैं नहीं जानती, बस मैं और मेरी पेस्ट्री। तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है ये जहां मिल गया है, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तो अनिकेत स्टार्टेड विद कारवां, मतलब चलो मैं भी कारवां पे कुछ ऐड करता हूं। सो दैट वाज आल्सो मेडिटेशन, बिलीव मी। वो छोटा बच्चा जो है ना, वो खुशी से जो पेस्ट्री खा रहा है ना, दैट इज आल्सो मेडिटेशन, दैट इज आल्सो मेडिटेशन। अगर आप सही मायने में मेडिटेशन के स्टेट में हैं, आपको अंदर से जो एक तरह से खुशी होती है, राइट, जो खुशी होती है। अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज द टेक्निकल वर्ड्स लाइक डोपामाइन एंड दिस एंड दैट, जो अमेरिकन वर्ड्स है, अंदर से कुछ होता है which is wonderful, right? So, and as I say, अगर आप रनिंग भी करते हो तो आप चेक करके देखना, जो रेगुलर रनर्स है, आफ्टर सम टाइम आपके थॉट्स गायब हो जाते हैं दौड़ते दौड़ते, एंड यू आर इनटू द मेडिटेशन स्टेट। सो दैट इज वंडरफुल, दैट इज वेरी मच वंडरफुल। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, डाइट पे। डाइट पे भीषण, वंस अगेन मैं एक बात बता रहा हूं, मेरे घर में एक BMW भी है, एक्चुअली मर्सिडीज भी नहीं है, BMW भी नहीं है, लेकिन है। उस BMW में कभी कभी मैं केरोसिन भरता हूं, केरोसिन, एंड कभी कभी मैं कोकोनट ऑयल भरता हूं, बट मेरी कार बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। एंड यू कैन सी आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो इंटेलिजेंट। कभी कभी मैं पेट्रोल भर देता हूं, कभी डीजल भर देता हूं, कभी केरोसिन भर देता हूं, कभी कोकोनट ऑयल भर देता हूं, जो आए भर देता हूं उसमें। कार एकदम स्मूथ चलती है, ड्राइविंग प्लेजर। डेफिनेटली वापस कोई बोलेगा ये बेवकूफ है। तो भाई साहब, जब मर्सिडीज में, डीजल वाली मर्सिडीज में पेट्रोल नहीं भरते, केरोसिन नहीं भरते, तो इस बॉडी में पास्ता और पिज्जा बार बार क्यों भरते? जब डीजल वाली मर्सिडीज में केरोसिन नहीं भरते, तो ये वाली मर्सिडीज में, BMW में रोज का केरोसिन क्यों भर रहे हैं? Of course, you have to agree with me. Human beings are the most intelligent species. Yes or no? भाई साहब, मैं मजाक कर रहा हूं, सबसे इडियट स्पीसीज है। शो मी एनी स्पीसीज अदर देन ह्यूमन बीइंग जो बीमार पड़ती, अदर देन ह्यूमन बीइंग, एनी स्पीसीज। सुना है कभी शेर बीमार पड़ता हो? वो मोगली में हो सकता है, जंगल बुक में, कि शेर खान बेचारा बीमार पड़ गया, राइट? चीते को बीमार होते देखा। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली स्पीसीज जो बीमार पड़ते, अनफॉर्चुनेट। और ह्यूमन बीइंग्स की वजह से उसके आसपास जो रहने वाले प्राणी, वो भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ बिगड़ गए। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी स्पीसीज ऑन दिस अर्थ नोज व्हाट इट शुड ईट, एंड वो वही खाएगा। हाथी को एग्जैक्टली पता है उसको क्या खाना है और वही खाएगा। हाथी को आपको और कुछ नहीं खाएगा। बंदर को तो क्या खाना है वो वही खाएगा, राइट? बंदर के सामने रख दो पिज्जा और केला, क्या खाएगा? तो केला खाएगा। अब ये अलग बात है कि हम लोग इंटरप्रिटेशन में बहुत इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, तो हम तुरंत इंटरप्रिटेशन करें, मतलब केला खाने वाला बंदर ही होता है, राइट? हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। भाई हुआ यूं, एक हमारे बहुत ही संत सज्जन पुरुष थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे मजदूर लोग बैठे हुए और उनको भाषण दिया जा रहा कि भाई दारू नहीं पीने, ड्रिंकिंग वाज नॉट गुड। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं। सो ही गॉट वन ग्लास कांच का एंड उसमें विस्की डाली एंड थोड़े कीड़े डाले, कीड़े मर गए। सो ही थॉट कि लोग समझ गए होंगे। उन्होंने लोगों को बोला कितने लोग समझ गए? एवरीबॉडी रेज द हैंड्स। वंडरफुल। मैं नहीं कहता था लोग समझ जाएंगे। अच्छा क्या समझे? तो उसमें से एक भाई साहब आके बोले, सर हम ये समझ गए कि दारू रोज पीना चाहिए, उससे पेट के सब कीड़े मर जाते। लेट अस अंडरस्टैंड, वो समझा रहे थे कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं और हमने एनालाइज किया कि रोज पीना चाहिए। तो जिसको जो इंटरप्रेट करना है वो तो वही करेगा। बट टेल मी वन थिंग, हम ये जो करते हैं, सम ऑफ माय फ्रेंड्स वुड से रोज थोड़ो खाइए, किसी दिन पिज्जा खाएंगे। पर सर इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप किसी दिन पिज्जा खाओगे, किसी दिन समोसा खाओगे, किसी दिन खमन खाओगे, किसी दिन ढोकला खाओगे, किसी दिन ये खाओगे। इंडिया में जो इतनी सारी चीज है,
कि फिर रोज यही खाते रह जाएंगे? So anyway, do I mean I'm opposed to any type of diet? The answer is no. The answer is no. But the fact is that, please understand, जो डाइट नेचर ने बनाया है, that is natural and that is suitable for human consumption. जो भी कुक्ड है, वो इतना सुटेबल नहीं है हमारी बॉडी, which is actually a fact. अगर आप डाइट के बारे में समझना चाहें, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, मैं एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी हूं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना था, जो रैंक होल्डर आया था, और जिसको इनकम टैक्स का प्रोविजन आती, सिर्फ उसको यही नहीं पता है कि कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन से पेट में दुखता है और कौन से क्या होता है. सो टेल मी, कैन आई बाय एनी मीन्स बी एन इंटेलिजेंट पर्सन? मतलब वो हमारे कल्चर कहाँ जा रहा है? घर के एक एक जन को पता होना चाहिए किस चीज के साथ क्या खाया जा सकता है, किस चीज के साथ नहीं खाना चाहिए. भाई उड़द की दाल के साथ दही नहीं खा सकते, रॉन्ग. मिल्क के साथ ऑनियन नहीं खा सकते, रॉन्ग कॉम्बिनेशन. ये आपकी बॉडी को नुकसान करेगा ही. अच्छा, मर्सिडीज में भी 2 दिन केरोसिन चला लोगे ना तो थोड़ी तो चली जाएगी, तुरंत नहीं बिगड़ती है, धीरे धीरे करके बिगड़ती है. सेम इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी. सो आई थिंक regarding diet, my point is the more simple you eat, you are in a better position. अच्छा, अब क्या होगा वापिस हम समझे. होगा ही कि when I'll say this, तो वैभव मुझे ये कहेगा, मेरा फ्रेंड है वैभव छत्राड़ा, he will tell, तुम जी क्या रहे हो फिर, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? हमको बहुत मजा आ रहा है समोसा खाने का, और तुम एप्पल खा रहे हो. तो भाई वैभव, तूने ऐसे कैसे नक्की कर लिया कि समोसा खाने में मजा आता है और एप्पल खाने में मजा नहीं आता? हमने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया कि जो विस्की पीता है उसको बहुत मजा आता है और जो पानी पीता है उसको कम आता है? हमने तो मान ही लिया, मतलब सिगरेट स्मोक करने तो मान ही लिया कि सिगरेट स्मोक करने वालों को ही मजा आ रहा है, बाकी लोग तो बोरिंग है. विस्की वालों ने मान ही लिया कि विस्की पीने वाले ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के तो. अच्छा, यू डोंट ड्रिंक, मतलब ऐसे देखते जैसे आपने मर्डर कर डाला. यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक. सो एनीवे, सी, आई एम नॉट अपोज टू एनीथिंग. I am not on this whether a person should smoke or not, should drink or not. I am not on that particular aspect. But my point is कि why do we require all these things? अगर मैं सिगरेट फूकता हूं और तभी मुझे मजा आ रहा है, am I a slave or a master? Am I a slave or a master? अंजलि जी, I can see you in the car. I'll ask a question. अगर कोई गुजरात का आदमी सुबह सुबह उठ के बोले, जब तक चाय नहीं पीता तब तक मेरी सुबह नहीं होती, is he a master or slave? He is a slave. Slave. He is a slave. तो स्लेव किसी का बनने की क्या जरूरत है? मैं कहा ना कह रहा हूं चाय नहीं पीनी चाहिए. कभी किसी दिन चाय का कप उठा लिया एंड यू एंजॉय दैट, तो वो भी मेडिटेशन हो सकता है, राइट? वो भी मेडिटेशन होता है. बुद्धिस्ट मॉन्क ज़ेन, अगर आपने ZEN ज़ेन सुना है, तो उसमें ऐसे कहते हैं कि कोई आदमी चाय कैसे पीता है ना, उसके ऊपर से आप कह देंगे कि आदमी का कैरेक्टर क्या है, राइट? ये कौन से लेवल का विजडम है उसके पास. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई बी यू नो लाइक दैट. मतलब मैं क्यों बार बार स्मोक करता हूं? क्योंकि मैं अपने आप से परेशान. तो थोड़ी देर के लिए अपने आप से कट ऑफ होने के लिए स्मोकिंग में जा रहा हूं. क्यों बार बार चाय पी रहा हूं, बार बार क्यों पी रहा हूं, राइट? और व्हाई डू आई रिक्वायर समथिंग? ये पान मावा बार बार क्यों चाहिए? अगर मैं अपने आप से बहुत खुश हूं तो मुझे ऐसी एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए. एंड ऑन फूड, हमने एक अमेरिकन कंसेप्ट सुना हुआ है. आई कैन सी कमलेश परीख सर. सो परीख सर, यू हैव हर्ड अबाउट एन अमेरिकन कंसेप्ट. हम इंडियंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वी हैव अ वंडरफुल कल्चर. वो सही है, अमेरिकन ने हमारे दिमाग में खतरनाक भूत घुसाया है. ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग. ब्रेकफास्ट ठुस ठुस के खा. I don't want to challenge Americans, but I tell you one thing, this has never been an Indian concept. Check करके देखना. In the morning only have fruits. उसके बाद ऑफिस जाओ और काम करके देखो कैसा फील होता है. एंड सुबह सुबह मस्त वो क्या बोलते हो उसको, आलू पराठा भी खाओ, डोसा भी खाओ, जितना खा सको सब खा जाओ. हैवी ब्रेकफास्ट,
अब ऑफिस पे जाओ, you feel drowsy. You feel drowsy. Please understand, Indians have never said heavy breakfast. Indians have never said. What is the Indian concept? The Indian concept is हमारी digestive system has direct connection with sun and moon. Sun and moon has direct connection. The most powerful thing that governs human body is sun. तो खाना उस टाइम पे उस तरह से है जो सन की पोजीशन. In the morning, sun is mild, eat mild. Eat like a king means have nutritious food like king. Rich in nutrition, not rich in calorie. Right? सुबह सुबह आलू पराठा खाना कोई compulsion नहीं. My personal view is, even if you start this change from today onwards, up to morning 11 o'clock, it would be preferable if you can go up to 1 o'clock, but up to morning 11 o'clock, don't take anything other than vegetable juice, fruit juice or fruits, nothing else. No cooked food. No cooked food. एक ये ट्राई करके देखे. शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, वो समोसा बुलाएगा, कचौरी बुलाएगी, राइट? बट थोड़े दिन ट्राई करेगा. एंड सेकंड, अगर कर सको तो एटलीस्ट फॉलो इट 90% टाइम्स. आई डू दैट. आफ्टर सनसेट डोंट ईट एनीथिंग. एक्चुअली हमारी बॉडी आफ्टर सनसेट डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से कर पाती, बिकॉज सन इज द सोर्स फॉर अवर डाइजेशन. व्हेन द सन इज नॉट देयर, देन यू कैन नॉट डाइजेस्ट. देखो, लॉजिक तो आपको निकालना है तो आप लॉजिक निकाल ही सकते कि सन यहाँ नहीं दिख रहा है, दूसरी कंट्री में तो दिख ही रहा है, बराबर. रात को फिर 12 बजे भी खाइए आप. संदीप जी को रात को 12 बजे खाना है, वो अपने यूएस वाले फ्रेंड को फोन करेगा, सन दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, तो उसे खाने दो. लेट अस अंडरस्टैंड, हमारा इंडियन कंसेप्ट वाज नेवर लाइक सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट. बिकॉज आपको मैं बता दूं, आपकी बॉडी की काफी सारी एनर्जी डाइजेशन में जाती है when particularly your food is cooked. When your food is cooked, the more the food is cooked, the more and more your body requires energy for digestion. So it will take away all other energy. वो digestion पे focus करेगी. आप ऑफिस में अच्छा काम कर ही नहीं सकते. और जिसको अगर ऑफिस में बैठ के हर थोड़ी देर पे चाय कॉफी जरूरत पड़ती हो, तो फिर थोड़ा सोचने की जरूरत है. 3 ऑप्शन हो सकते हैं. नंबर 1, either you are in the wrong profession, you are not enjoying your work, और आपकी उम्र हो चुकी है, और थर्ड, और गुलाम हो चुके हैं, योर एनर्जी लेवल इज डाउन. सो वंस अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं किसी चीज का नेगेटिव नहीं कह रहा हूं. इंडिया का एक ग्रेट कल्चर है. इंडिया ने कभी नहीं कहा ये करो ये नहीं करो. इंडिया का एक कंसेप्ट था सम्यक, समतुला, राइट? बी इन द सेंटर. एकदम इस साइड भी नहीं जाओ, एकदम उस साइड भी मत जाओ. इंडिया ऑलवेज सेड व्हाटएवर सूट्स योर बॉडी डू इट, राइट? India does not give sermons. India says you consume and just observe what is the effect of that on the body. आप एक काम करके देखो, rather you try it out. 3 days in the morning have very heavy breakfast. दुनिया भर के heavy breakfast सब खा लो. कचौरी, समोसा गुजरात में तो बहुत मिलता है, अहमदाबाद में तो बहुत मिलता है, खाओ दुनिया भर का. 3 दिन, राइट? और ऑफिस जाओ एंड ऑब्जर्व कर आपको कैसा फील होता है. और दूसरे 3 दिन सिर्फ फ्रूट्स खा के जाओ, या फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूस पी के जाओ एंड ऑब्जर्व कैसा फील हो रहा है. या पढ़ाई करने की कोशिश करो एंड जस्ट ऑब्जर्व क्या फील हो रहा है. एंड आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमारा बनाया हुआ खाना ज्यादा सही है, नेचर का बनाया हुआ खाना ज्यादा सही? लॉजिकल देखो, बाकी कोई भी थियरी कहीं भी हो सकती है, बट हमने बनाया और नेचर ने बनाया, दोनों में से ज्यादा सही कौन सा होगा? दैट वन हैज टू थिंक अबाउट इट. सो एनीवे, आई एम नॉट वेरी मच गोइंग टू बी ऑन डाइट, बट मैं सिर्फ एक ही चीज सोचना चाहता हूं कि अजीब पढ़ा लिखा हूं मैं. इनकम टैक्स की सेक्शन आती है, पेट में गड़बड़ होती है कौन से खाने से, वो नहीं आता. हाय रे हाय, फिर भी अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहा हूं. आई थिंक थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर. वील हैव टू थिंक अबाउट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हेल्थ. तो सबसे पहली चीज आती है हैप्पीनेस. बॉस, एक चीज है, अगर आपके चेहरे पे हंसी नहीं है, मैं तो आपको पढ़ा लिखा ही नहीं गिनता. सॉरी, आई माइट बी रॉन्ग. जिसके चेहरे पे हंसी नहीं है वो क्या रोमांटिक है? चले आए लैला मजनू. दुखी लोग कहां से रोमांटिक हो गए? वो देवदास भाई, वो कहां से रोमांटिक हो गया? रोमांटिक तो वो होते हैं जिनके चेहरे पे हंसी होती है. सो हैप्पीनेस. एंड यहां पे मैं क्विकली आपको बताऊं, इमोशंस. सर, इमोशंस का हमने बहुत गलत मतलब निकाल के रखा है. इमोशंस के नाम पे हम क्या बात करते पता है? आई एम सो इमोशनल,
मतलब सागर काडेचा ने मुझे 2-4 गालियां दी और मेरे बारे में ऐसा बोला, बॉस्की ने मुझे बारे में जेलसी से बोल दिया ये तो ऐसा है, और मैंने इतना मुंह नीचा कर दिया और मैं बोलता हूं मैं तो बहुत इमोशनल हूं। भाई साहब आप इमोशनल नहीं, आप इमोशनल ड्रामेबाज हो, आपको इमोशनल डायरिया हो गया। इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी करे और रोते हो जाना या भड़क जाना। इमोशंस का मतलब बीइंग एट ईज, इजीली उस चीज को एब्जॉर्ब करना या रिफ्लेक्ट कर देना। जो एब्जॉर्ब करना चाहिए एब्जॉर्ब करो, जो नहीं करना है रिफ्लेक्ट करके छोड़ दो, दैट इज इमोशनल, राइट। अनफॉर्चुनेट चीज क्या है पता है, एक घर में 2 भाई, दोनों को सेम सिचुएशन है, एक भाई एकदम स्टेबल है और दूसरा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। दुनिया क्या मानती है, सेकंड इज वेरी इमोशनल। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड स्टेटमेंट अ पर्सन कैन हैव, फर्स्ट इज द मोस्ट इमोशनल पर्सन। द ओनली थिंग इज उसको डायरिया नहीं हो गया इमोशन के नाम पे, ही कैन एब्जॉर्ब द थिंग्स वेरी वेल, राइट। तो कई बेवकूफ लोग अपने इमोशनल ड्रामा को ऐसा दिखाते जैसे पूरी दुनिया में अगर किसी को फीलिंग है तो उनको ही है, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज नॉट इमोशंस, राइट। तो इस चीज को अगर आपकी लाइफ में जेलसी है, अब मैं देखो वेल्थ की बात कर, संदीप के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है एंड आई एम वेरी जेलस अबाउट इट। टेल मी वन थिंग, मेरी हेल्थ को असर होगी, यस, मेरी वेल्थ को असर होगी, यस। आई एम पासिंग ऑन द वाइब्रेशंस टू द नेचर कि बॉस मुझे मत देना, ये मुझे मत देना। With jealousy, you are stopping that wealth to come in your life. With laziness, you are stopping something good to come in your life. So everything is connected. It is very, very much connected, right? अगर मेरे अंदर hatred होगी, अच्छा बात ऐसी है, सागर रहता है बेंगलोर में, मैं यहाँ पे सूरत में बैठे बैठे इतनी गालियां दे रहा हूं, सागर को तो पता नहीं कब फर्क पड़ेगा, मुझे अभी पड़ रहा है, राइट। सो विथ ऑल दिस हेट्रेड, जेलसी, दिस दैट, मतलब क्यों हमें इतना सारा प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये अरे करने दो ना यार। एंड मुझे एक बात बताओ, सुबह सुबह ये खतरनाक न्यूज़पेपर पढ़ के हम कहां जाएंगे? बाप रे बाप, कहां पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं? हाँ आजकल आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस, तो क्या कर रहे हैं हम? सुबह सुबह गो अहेड, वॉक पे जाइए, हंसिए। अरे अकेले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पागल समझे तो पागल से। एक मेरा स्टेटमेंट है, मैं कई बार कहता हूं, ये मेरा वाला है, कि जो पागल नहीं है वो पागल है। थोड़ा पागलपन बहुत जरूरी है। डांस पार्टी वाला, गिटार वाला, सिंगिंग वाला, फोटोग्राफी वाला, ट्रेकिंग वाला, ट्रेवलिंग वाला, ये पागलपन नहीं। जी कह रहे हो तुम, राइट। तो पागलपन बहुत जरूरी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। स्लीप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, इफ यू डिसाइड कि रात को 8 बजे या 9 बजे के बाद यू विल नॉट स्विच ऑन योर गैजेट्स, आप मोबाइल नहीं यूज करोगे, टीवी नहीं यूज करोगे, तो अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे घर पे टीवी रखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्या टीवी मुझे एंटरटेन कर लेगा? मैं अपने आप को एंटरटेन कर लेता हूं। आई डोंट हैव अ टीवी एट होम, आई डोंट हैव एनी एयर कंडीशनर, आई डोंट रिक्वायर इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार क्या बात कर रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर पे आ सकते हैं, रह सकते हैं। ऑफिस पे सब है, बिकॉज यू नो दैट्स अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। एट माय होम आई डोंट हैव एनी टीवी, नो एसी। अगर आप ऐसा डिसाइड कर ले रात को 8 बजे 9 बजे के बाद मैं ये डिवाइसेस नहीं यूज करूंगा, टीवी और दिस, और एटलीस्ट अगर बेडरूम में टीवी है, सबसे पहले क्या करो पता है, वो टीवी निकाल के किसी को चैरिटी में दे दो, या किसी के साथ दुश्मनी निकाली है ना, उसके बेडरूम में जाके इंस्टॉल कर दो। बेस्ट वे दुश्मनी निकाल लेगी। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज है। सी, अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे, मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बता रहा हूं। दिस कंसेप्ट चाइनीज लोगों ने बहुत अच्छा बताया, इंडियंस ने भी बताया, जैनिज्म में भी है, बट मैंने एक चाइनीज बुक पढ़ी थी। ऑफ कोर्स चाइनीज चीजें अच्छी नहीं होती कहीं, बट एक बहुत अच्छी बुक मैंने चाइनीज पढ़ी थी। बाय द वे, वन ऑफ माय कॉलेजेस वाज इन चाइना, आई स्टडीड इन ग्वांगझाओ, चाइना। सो एक बुक पढ़ी थी चाइनीज, और उसमें इतना ब्यूटीफुली लिखा था कि हम, आपने हिंदी में सुना होगा पहर, राइट। हम इसको आवर्स में कहते हैं, वो पुराने जमाने में 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, लाइक दैट। तो चाइना में कंसेप्ट इसी तरह से, पहर को 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, 1.5 घंटे, और हर पहर का एक इंपॉर्टेंस होता है। सपोज 9 o'clock
से लेके 10:30 का जो आपका पहर है, इट क्लीन्स योर लिवर. 10:30 to 12 वाला है वो आपके स्प्लीन को क्लीन करता है. 12 to 1:30 at night, that clears your kidneys, and like that there is a cycle. There is a cycle, but it will clean in a very efficient manner if you are having a good sleep. And if you are not having a good sleep, तो वो clean करने की कोशिश करेगा, but इतना clean नहीं होगा. It is as good as a cleaner cleaning some place, and लोग अगर continuous उस पे walk करते जा रहे तो clean कैसे हो? So आप समझ लो, आप जो लोग लेट उठते हैं, आप समझ लो आपने अपने किसी बॉडी ऑर्गन को तो नुकसान पहुंचा ही दिया. लेट नाइट तक सोते हो, आपके रीजन चाहे कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, मैं वापस कह रहा हूं, अगर नेचर ये चाहता था कि आप लेट नाइट तक जगे, तो वो सनसेट करता ही क्यों? सनसेट इज एन इंडिकेशन टू अस कि भाई अपने को यह सप्त शु जागृति नहीं करनी है, ये प्रोफेशन में करो, रियल लाइफ में मत करो. बराबर है? उल्लू बनने की कोई जरूरत नहीं है कि लेट नाइट तक जागते रहे. तो ये छोटी छोटी कोशिश करें. मैं आपको बाबा नहीं बना रहा हूं, बोले यार ये तो बाबा नो, मैं छोटी छोटी चीज कह रहा हूं. आप एक या दो चीज जो आप अप्लाई कर सकते हो ना, उससे तो स्टार्ट करो. फिर धीरे धीरे आपको शायद और इंटरेस्ट पड़ेगा, शायद आप थोड़ा और इंटरेस्ट करोगे. नेहा कपूर इज आस्किंग, आई लव लेट नाइट स्टडीज, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है, डिस्टर्बेंस होता है. सो ठीक है भाई, देखो मैं जो भी कह रहा हूं उसके एक्सेप्शंस हो सकते, उसके एक्सेप्शंस हो सकते. अगर लेट नाइट स्टडी करनी पड़ती है ठीक है, बट अदरवाइज देयर आर मेनी चांसेस कि जो लेट नाइट कर रहा है वो अपनी स्टडी को शिफ्ट भी कर सकता है, शेड्यूल को. आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो ठीक है. मैं कोई भी रूल नहीं बता रहा. इंडियंस हैव नेवर सेड दैट देयर आर रूल्स. इंडियन सेड कि ये जनरली ऐसा है, आप इसको ऐसे करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा. सो दैट इज इट. कोई गैजेट आप यूज ना करें. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब मैं इसको थोड़ा वेल्थ के साथ फटाफट लिंक करता हूं. यार ये हेल्थ और वेल्थ का लिंक बताओ यार. वेल्थ की बात करो तुम, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग एकदम हेल्दी है, जो लोग बहुत एनर्जेटिक है, दे सिट इन देयर ऑफिस फॉर वेरी लिमिटेड टाइम एंड दे अर्न मोर. मैं आपको एक आदमी की बात बताता हूं, मेरा एग्जांपल सुनना. संदीप जी, I am going to talk about an unfortunate person. An unfortunate person. This gentleman lost his father. He lost his father, and he has a very big quarrel with his brother. Very big quarrel. His salary, his remuneration, actually, the remuneration he was getting from the company has not increased for many years. Many years. He is so unfortunate, and he has the burden of running the entire business. And people blame him a lot. उसके घर को देख के लोग ब्लेम करते हैं. That unfortunate person has business in Surat, जहां पे मैं बिलोंग करता हूं. But you know what? He has not visited his business for his factory for last 13 years at least. कितना अनफॉर्चुनेट है. 13 साल से ऑफिस एंड फैक्टरी नहीं देखी उसने. फैक्टरी का नाम है रिलायंस. सूरत के अंदर there is a huge plant of Reliance, huge plant, right? At least in the last 13 years, I have not heard a single time Mukesh Ambani coming to Surat. Still his business is going on. So let us understand one thing. There is a difference between being an entrepreneur and self-employed. Entrepreneur सिर्फ वो होता है जिसके पास टाइम भी है और मनी भी है और लाइफस्टाइल भी है. जिसके पास सिर्फ मनी है, he is a self-employed person. He is a self-employed person. On a lighter note, only on a lighter note, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ. So Bosky, some of my friend, when they tell, अरे यार दिवाली के 5 दिन को छोड़ के टाइम ही नहीं मिलता है, धंधे में से निकल ही नहीं पाते हैं. ऐसा आपने भी कई लोगों से सुना होगा. तो मेरा अगर कोई बहुत खास फ्रेंड है, बता, देखो डिपेंड करता है. आपको भी पता ना स्कूल फ्रेंड्स के साथ कैसी बातें करते हैं. हाँ, तो खास फ्रेंड है, मैं उसको बोलता हूँ, अच्छा टाइम नहीं मिलता, सुसाइड कर ले. बोले व्हाट? अबे बहरा है, टाइम नहीं मिल रहा है तेरे को, सुसाइड कर ले. वैसे भी सुसाइड का क्या फर्क पड़ता है? तू वैसे भी देख, 30 साल का होगा तभी तो दुकान पे होगा, 40 पे भी दुकान पे होगा, 50 पे भी दुकान पे होगा, 60 पे भी दुकान पे होगा, 70 पे दुकान होगा, और फिर एक दिन मर जाएगा. जिया तो तू वैसे भी नहीं है. आज मर,
50 साल के बाद मर, एक ही बात है बॉस। अगर आपके पास टाइम नहीं है, और कई लोग इतने शान से बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बॉस ये लिमिटेशन है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन देखे, दादर मैंने ज्यादातर बिजनेसमैन ऐसे देखे हैं कि जिनसे मैंने सीखा है। वन बिग बिजनेसमैन ऑफ सूरत टॉट मी, इफ आफ्टर 6 o'clock if I am sitting at my office, I become a clerk. अच्छा, मैं जो भी कहूं ना, इसको ब्लाइंडली मत फॉलो करना। एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल। ही ओनली मेंट टू से दैट कि जरूरत से ज्यादा बैठने से आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। सो आफ्टर 6 o'clock is not there. I know one young chartered accountant. He's in Mumbai and he's telling me, in spite of being in Mumbai, 6 o'clock I'm at home. And मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूं उसके बाद। मैं बोला तेरे पास मुंबई में बैडमिंटन खेलने की जगह है? तो मैं बोलता हूं बॉस, लाइफ तो तू ही जी रहा है फिर मुंबई में, बाकी मुंबई वाले पास कहां है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज डू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास टाइम है तभी तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे, तभी तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनोगे। एंड मैंने बिजनेसमैन से ही सीखा है कि आप अपने 365 डेज को डिवाइड करें। से 100 डेज हॉलीडेज, छुट्टी। अब आपको लगेगा 100 दिन छुट्टी। फ्रेंड्स, आई टेल यू, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर मेनी इयर्स, मेनी इयर्स। मैं 20 दिन यूरोप चला ही जाता हूं, बैग उठा के, इधर उधर कुछ नहीं देख। एंड मेरी ऑफिस ठीक से चलती, कोई काम पेंडिंग नहीं है। आप में से जितने लोग यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, चेक करके देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई काम दिया था और वो हुआ नहीं। सब काम हो जाता है मेरी ऑफिस। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, मैनेजमेंट। 100 दिन की छुट्टी, 50 डेज स्ट्रेटेजिक डेज, जहां पे हम ये डिसाइड करते हैं, सी हम रोज ऑफिस पे जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, सुबह जाते हैं, आ जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा विजन ये हो गया, ये हो गया, हम बाहर नहीं देख पा रहे, हमारा होराइजन छोटा हो गया। 50 डेज आर स्ट्रेटेजिक डेज, जहां पे आप स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि वेयर आई वांट टू टेक माय बिजनेस, आई वांट टू टेक माय प्रोफेशन 5 years डाउन द लाइन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, राइट? दीज आर दिस। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपनी हेल्थ को इतना ध्यान दे पाएंगे। वेल, आई थिंक सो मेनी थिंग्स कुड हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट इट, बट टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज वेरी मच लिमिटेड। मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, कम से कम कुछ चीजें ना आपके दिमाग में से, आपकी लाइफ में से डिलीट कर दीजिए। डोंट यूज दिस स्टेटमेंट्स। आई कांट वेक अप विदाउट अ कप ऑफ टी। सवारे उठो એટલે ચાતો જોઈએ, इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। डोंट शो नेगेटिविटी। आई डोंट वांट टू बी स्लेव, मेरे पास टाइम ही नहीं है, प्लीज स्टॉप इट। या दूसरी एक चीज, अब मेरी एज होती जा रही, 10 बार बोलोगे तो हो जाएगी, 10 बार बोलोगे तो हो जाएगी। मुझे भी सीए बने 25 साल हो चुके, बट आज भी मैं उसी एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं जो 25 साल पहले करता। प्लीज अंडरस्टैंड। 10 बार बोलेंगे ना एज हो रही है, हो गए। फॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई चश्मे नहीं है, फॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नो ब्लड प्रेशर और नो कोलेस्ट्रॉल और नथिंग, कुछ भी नहीं है फॉर्चुनेटली। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये दिमाग में से निकाल दीजिए, पैसा दुख की जड़ है, पैसा पेड़ पे उगता है, ये स्टेटमेंट हटा दीजिए, ये सब स्टेटमेंट हटा दीजिए। जस्ट से दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन, राइट? अगर आप हेल्दी रहेंगे फिजिकली, माइंड से, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इमोशनली, इमोशनल का मतलब एट ईज होना है, डायरिया नहीं है, इमोशनल डायरिया। इमोशनली एंड स्पिरिचुअली यू विल लिव अ फैंटास्टिक लाइफ। एंड यही एंडेवर होना चाहिए आपका और मेरा। See, when I'm telling you, it does not mean I know better than you. मैं भी आपकी तरह कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हम सबको कोशिश करते रहना है कि we follow such type of things, and ultimately we are investing in ourselves. It is our life. It is our life. एक ही बार जीनी है, सिर्फ एक बार मिलने वाली है. So let us live it to the fullest. So let me thank Ahmedabad branch once again for this wonderful opportunity. Back to Harit. Thanks to all the participants. Thank you so much, sir, for an amazing session, sir. बहुत मजा आया, sir. We didn't want you to stop only, sir. In fact, everybody wanted you to go on and on. Thank you so much, sir. I would now request C. Anjali Choksi to propose a formal vote of thanks. Thank you, sir. It is always a treat to listen to you. Direct दिल से होता है आपका, मतलब
we're fortunate that we have two CCMs leading from the front. Your inspirational journey, your life stories, good living tips, importance of sports, yoga, wonderful explanation of cosmic energy. I could recollect the beauty of Ollie when you mentioned that connecting with nature, discovering yourself, importance of meditation, diet tips, your happiness and emotions understanding, importance of sleep. Today we have seen another amazing side of CA Jay Charya, and I truly believe that real wealth is health, and your fitness journey is not only known in council, but all members across India. Lastly, I would end following the footsteps of our own CCM and chairman with 4 beautiful lines. जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं. Thank you so much. I think we all should give a big round of applause. I think there are many Yeah. people joining. I think, sir, thank you so much from all of us. Thank you. Sorry, I was just, there was some network issues, so I could not start my video. But really lovely having you, Jay Charya ji. Thank you so much for sharing your valuable time with us. Thank you so much.